اگر ایسا ہی علاقے کے جلسوں کے حالات بنائے رکھے، ایسا ماحول رکھا، تو یاد رکھنا جلسوں سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو جلسوں سے فائدہ ہو تو جلسہ چھوٹا ہو یا بڑا، جلسے میں آؤ، سن کے جاؤ، عمل کرنے کا حد لے کے جاؤ۔ 4 لوگ توبہ کر کے اٹھو گے، جلسہ 5,000 کا کیوں نہ ہو، 50,000 کے جلسے پہ بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا، کروڑوں کے جلسے پہ بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تم نے کیا سوچ لیا کہ ہم نے بہت بڑا پہاڑ توڑ دیا؟ ایک جلسے میں آئے، ہم نے گپے شپے لڑائے، ہم نے دکان پہ جا کے کھینی کھایا، دکان پہ جا کے پان کھا لیا، دکان پہ جا کے چائے پی لی، ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ یاد رہے آج آسانی کے ساتھ جلسے کر رہے ہو، جلسوں کے تمہارے حالات ایسے ہو گئے ہیں، اب اکثر جلسوں سے قتل کی خبریں ملتی ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں کے بیٹے کا مرڈر کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا۔ یہی حالات رہے تو کل جلسے ہونے پہ پابندی لگا دی جائے گی، پابندی عائد کر دی جائے گی، ہمارے جلسے نہیں ہوں گے، علاقے میں جلسے منائے نہیں جائیں گے، جلسوں کا انعقاد نہیں کیا جائے گا، پھر جلسوں کے لیے ترس جاؤ گے۔ آج آسانی کے ساتھ تم جلسے کا انعقاد کر لیتے ہو، آتے ہو بیٹھ کے سن لیتے ہو، خطیب کو آسانی کے ساتھ بلا لیتے ہو، شاعر کو بلا لیتے ہو، نقیب کو بلا لیتے ہو، مائک آسانی کے ساتھ لگا لیتے ہو، ٹینٹ کا انتظام کر لیتے ہو، لوگ چندہ بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہارے جلسوں میں نہ خطیب آ پائیں گے، نہ شاعر آ پائیں گے، نہ ٹینٹ لگا پاؤ گے، نہ شامیانہ لگا پاؤ گے، تمہیں گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن حاصل نہیں ہوگی، اجازت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے جب تک آسانی کے ساتھ جلسے ہو رہے ہیں تب تک جلسوں کا فائدہ اٹھاؤ، جلسوں سے فائدہ حاصل کر لو۔ فائدہ کیا ہے کہ جلسے میں آؤ، بیٹھنے کے بعد دین کی باتیں سنو، شریعت کی باتیں سنو، یہاں سے اٹھو۔ اگر تم کل نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کا عہد لے کے اٹھو، کل شراب پیتے تھے شراب چھوڑنے کا عہد لے کے اٹھو، تم یہاں آئے ہو چوری کرتے تھے چوری نہ کرنے کا عہد لے کے اٹھو۔ یہی جلسے کی کامیابی ہے، جلسہ کرانے والوں کی کامیابی ہے، جلسے میں آنے والوں کی کامیابی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، یہ رکنے والے لوگ نہیں تھے، یہ آئے تھے جانے کے لیے چلے گئے۔ یہ سننے والے لوگ کہ 10-15 منٹ میری گفتگو سن لے۔ مجھے تو افسوس ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں ایک مزدور لے کے آتے ہیں، کبھی آپ نے کہا کہ تم میرے گھر میں آرام کرو اور جتنے پیسے کی بات ہوئی ہے تمہاری مزدوری ہم دے دیں گے، تم نے کبھی نہیں کہا۔ لیکن ہم لوگ آ کے یہیں پہ مسٹیک کر جاتے ہیں، ایک خطیب کو بلاتے ہیں، انہیں زیادہ راہ بھی دینا ہے، انہیں پیسے بھی دینے ہیں، نذرانہ بھی دینا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اسٹیج پہ بیٹھے رہو، پبلک چلی جائے گی، کوئی بات نہیں، تمہاری تقریر نہیں ہوگی، تم ایسے پیسے لے کے گھر چلے جاؤ۔ یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے گھر میں مزدور بلائے، ان سے کام نہ کروائے، انہیں پیسے دے دے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک جلسے میں خطیب آیا، ان سے آپ نے کچھ سنے بغیر ان کو گھر بھیج دیا، آپ کو تکلیف تک نہیں ہوتی، افسوس تک نہیں ہوتی۔ یہ جانتے ہیں یہ ایمانی کمزوری کی دلیل ہے، یہ عقیدے کی کمزوری کی دلیل ہے، اس لیے اپنے ایمان کے اعتبار سے مضبوط بنو۔ جلسہ کرتے ہو، اگر 2 گھنٹہ نعت خوانی سنتے ہو تو 1 گھنٹہ کم سے کم تقریر سن کے جاؤ۔ نعت سنو گے عشق رسول میں اضافہ ہوگا، تقریریں سنو گے شریعت کے علم میں اضافہ ہوگا، آخرت کی تیاری کرتے ہوئے نظر آؤ گے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اس لیے ضروری ہے ہم نہ نعت کے مخالف نہ شاعروں کے مخالف۔ الحمدللہ یہ فقیر بن نعت لکھتا ہے، ہزاروں کلام ہے الحمدللہ۔ یہ عظمت بھائی جانتے ہیں اچھی طریقے سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے، رسول پاک کی عنایت اور کرم سے ہم بھی الحمدللہ نعت گوئی کرتے ہیں، نعت کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں میں نہ نعت کا مخالف، نہ شاعر کا مخالف، نہ شاعری کا مخالف، لیکن میں آپ کا ضرور مخالف ہوں۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو؟ اپنے علاقے کا ہم نے ماحول کیا بنا رکھا ہے، سوسائٹی کا ماحول کیا بنا رکھا ہے، سماج کا ماحول کیا بنا رکھا ہے۔ آج تو مجھے گفتگو کرنی تھی اپنی بچیوں کے بارے میں کہ بچیاں کس قدر مرتد ہو رہی ہے، ان کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے۔ آئے دن خبریں آتی ہے فلاں گاؤں کی فلاں لڑکی کو فلاں آوارہ لڑکا وہ غیر مسلم لڑکا لے کے بھاگ گیا۔ تیری بیٹیاں ہر سال کئی بیٹیاں غیروں کے ساتھ شادی رچا رہی ہے، ان کو غیر لڑکے لے کے بھاگ رہے ہیں۔ کب تک جلسے کرتے رہو گے؟ کیا صرف جلسوں پہ دھیان دو گے؟
जलसे पे पैसे खर्च करोगे, जलसे के लिए कमेटी की तश्कील करोगे, जलसे के लिए कमेटी बनाओगे। नहीं नहीं नहीं, जलसे के साथ साथ जरूरी है हमारे नौजवानों को होश में आने की कि हमारे नौजवान अपनी बच्चियों के ईमान की हिफाजत के लिए भी टीम की तश्कील दे, अपनी बच्चियों के अकीदे की हिफाजत के लिए भी एक टीम बनाए, कमेटी की तश्कील दे, ताकि बेटियों के ईमान को कोई छीन ना पाए, कोई आवारा गैर लड़का हमारी बेटियों को उठा के ले जाना पाए। जानते हो आरएसएस वालों ने ऐलान किया था, अगर कोई हिंदू लड़का, गैर मुस्लिम लड़का किसी मुसलमान लड़की के साथ सिर्फ प्यार करता है, उसे प्यार के जाल में फंसा लेता है, तो उसे आरएसएस 2 लाख रुपए ताउन करेगी। और अगर उसके साथ वो गैर लड़का शादी कर लेता है तो आरएसएस उसे 3 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और अगर कोई लड़का उस लड़की के साथ शादी करने के बाद, कई साल इस्तेमाल करने के बाद उसे तलाक दे देता है तो उसे 6 लाख रुपए दिया जाएगा। ये आरएसएस की तरफ से ऐलान किया गया था और आज इसकी वबा हमारे समाज में फैली हुई है। कभी किशनगंज की लड़कियां भाग रही है, कभी आपके समाज की लड़कियां भाग रही है, कभी कटिहार की लड़कियां भाग रही है, कभी बारसोई की लड़कियां भाग रही है, कभी तालखोला की लड़कियां भाग रही है। ये जानते हैं ये हमारी कमी है, हमने जलसे तो बहुत किए लेकिन बेटियों के अकीदे की हिफाजत के लिए हमने कोई लाहे अमल तैयार नहीं किया, कोई रास्ता अपनाया नहीं, कोई इक़दाम नहीं किया। अगर यही हाल रहा तो तेरी बेटियों को गैर लेके चले जाएंगे। जब बेटियां नहीं बचेगी तो इनकी नस्लें आएंगी कहां से? जब बेटियां नहीं बचेंगी तो कोई औलाद होगी कहां से? कोई बच्चा पैदा होगा कहां से? इस्लाम के रास्ते पे चलने वाला कोई होगा कहां से? इसकी जरूरत है जहां पे जलसे के लिए मेहनत करते हो वहीं पे टीम की तश्कील दो, ताकि तेरे बेटियों की अकीदे की हिफाजत हो, ईमान की हिफाजत हो। ये काम करने के लिए क्या करना है? आपको एक टीम बनानी है, एक कमेटी की तश्कील देनी है, ताकि वो कमेटी के लोग वहां पे जवान भी हो, उलमा भी हो, खुतबा भी हो, शोरा भी हो, 10-20 लोगों की टीम हो। वो जलसे की तरह लोगों के गांव में जाके शामियाना और टेंट और पिंडान ना लगाए, बल्कि वो हर घर में जाए और जाने के बाद हमारी बेटियों को समझाए कि तुम्हारा ईमान क्या है, तुम्हारा अकीदा क्या है, शरीयत क्या कहती है, तरीक़त क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, मुस्तफा के फरामीन क्या क्या है, रब ने क्या क्या फरमाया है। वो बेटियों को चुपके से समझाए ताकि बेटियों को ये समझ में आए कि ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, इस्लाम की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। कुरान हमारे लिए उतारा गया है, हिदायत के लिए कुरान आया था ताकि हमारी बेटियां ये सारी चीजें समझे। ये कौन करेगा? ये आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर खजूर बाप घर से नहीं निकलेगा तो तेरी बेटियां यूं ही लुटती चली जाएगी। और तुम क्या समझते हो तेरे जलसों में सिर्फ नेक काम होते हैं? शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं हकीकत हाल बयान कर रहा हूँ। तेरे जलसे में आके ये छोकरे और आवारा लड़के आके इस जलसे को जलसा नहीं बल्कि उन्होंने इस जलसे को प्रपोजल का बना दिया है। यहाँ पे लड़कियों को प्रपोज किया जाता है, किसी लड़की से मुलाकात की जाती है, लड़की से भेंट किया जाता है, उनके साथ बातचीत की जाती है, उनका फोन नंबर लिया जाता है, उनका कांटेक्ट नंबर लिया जाता है। ये आवारा बच्चे आते हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ा है, वो इसलिए आते हैं ताकि फूफी की लड़की के साथ मुलाकात हो जाए, खाला की लड़की के साथ मुलाकात हो जाए, मामी की लड़की के साथ मुलाकात हो जाए। इसलिए ये कहने का मतलब किसी को ताना देना नहीं, क्योंकि मेरा बेटा भी जवान है, आपका बेटा भी जवान है, आपकी बेटी भी जवान है, मेरी बेटी भी जवान है। किसी को ताना देना नहीं, लेकिन ये कहने का मतलब है कि हकीकत का आईना दिखाना है मुझे। वो इसलिए कि हमारी बेटियों पे अब आपकी नजर होनी चाहिए। तुम्हारी बेटियां यूं ही खुले आम जलसे में ना आए, पर्दे का एहतमाम हो तब जाके जलसे में आए। वो बाकायदा पर्दे के साथ आए, पर्दे से जाने का रास्ता हो, पर्दे से आने का रास्ता हो, पर्दे में आके बैठे शरीयत की बातें सुने, तरीक़त की बातें सुने, ताकि तेरी बेटी की जिंदगी पर्दा में गुजरे, तेरी बेटी की जिंदगी पर्दगी में गुजरे। जब इनकी जिंदगी पर्दगी में गुजरेगी, इनकी कोख से गौसे आज़म का दीवाना पैदा होगा, ख्वाजा गरीब नवाज का शहनाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अमीरुद्दीन कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए जरूरत है, ये कौन समझाएगा? कौम का दर्द हर आदमी के अंदर होता है, कोई इजहार करता है नहीं करता है, लेकिन मैं बबांगे दोहल बोल रहा हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना। अगर बेटियों की इज्जत की हिफाजत तुमने नहीं की, तुमने देखा नहीं, अपने इलाके में देखो, आज मुस्लिम अक्सरियत इलाके में हमारी बच्चियां सोशल मीडिया पे किस कदर एक्टिव है, किस कदर वो इन्वॉल्व है, किस कदर सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, किस कदर मसरूफ है।
देखा नहीं तुमने, हमारी बेटियां अगर घर में काम करती है तो सोशल मीडिया पे वो रील्स डालती है, वो ट्विटर पे रील्स डालती है, वो न जाने इंस्टाग्राम पे रील्स डालती है, लाइव आती है, यूट्यूब में आके फेसबुक में लाइव आती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाप की नजर अपनी बेटियों पे नहीं है, औलाद पे नहीं है। अगर तुमने बेटियों पे नजरें नहीं रखी तो आज तो तुम्हारे समाज की चंद बच्चियां रील्स बना रही है, कभी भक्का के नाम पे कोई रील्स बना रही है, कभी पीठा के नाम पे रील्स बना रही है, कोई बेटी कभी साग तोड़ने के लिए जाती है वो रील्स बना रही है। यानी सिर्फ पाखाने की जगह को लेके, लैट्रिन और टॉयलेट की वीडियो को छोड़ के हर जगह की वीडियोस हमारी बच्चियां सोशल मीडिया पे डाल रही है। ये एक बेगैरत बाप की बेटी है, जिस बेगैरत बाप ने अपनी बेटी को समझाया नहीं है। ये कौन करेगा? सिर्फ तुम जलसा करते रहोगे, तेरी बेटियों को कौन समझाएगा? तेरी बेटियां यूं ही आवारा जिंदगी गुजारती रही तो इनकी कोख से कोई अच्छा बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। ये भूल जाना, इनकी कोख से कोई गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होगा। जब तेरी बेटी मुजरा करेगी टिकटॉक पे तो इनकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा भी ये डांस करने वाला पैदा होगा, छोकरा पैदा होगा, मुजरा करने वाला पैदा होगा। ये मत समझना कि इनकी कोख से अच्छा बच्चा पैदा होगा, क्योंकि जब ये मुजरा करेगी तो इनकी औलादें भी मुजरा करेगी। जब ये मुजरा करेगी इनकी कोख से पलने वाला, कोख में पलने वाला बेटा भी मुजरा करता हुआ निकलेगा। इसलिए जरूरत है, तुम चाहते हो कि तेरी बेटियों की कोख से अच्छे बच्चे पैदा हो तो अपनी बेटियों को मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम ना दो, बल्कि दुनियावी तालीम जरूरी है। इस दौर में पर्दे के साथ दुनियावी तालीम भी दो और दुनियावी तालीम के साथ साथ इन्हें दीन की तालीम भी दो। जहाँ पे मोटी मोटी किताबें पढ़ा के इन्हें डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, न जाने क्या क्या बनाओ, वहीं पे अपनी बेटियों को तुम उनकी हाथ में एक पतली सी किताब सीरत फातिमा की जरूर दे देना, सीरत आयशा की एक पतली सी किताब जरूर दे देना, ताकि तेरी बेटी मोटी मोटी किताबें पढ़ के दुनियादार बने और सीरत फातिमा की किताब पढ़ के कनीज़ फातिमा बने। जब इसकी कोख से बच्चा पैदा होगा तो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पैदा होगा, रसूल आज़म का शहजादा। इसलिए जरूरत है कि अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दस को फतह किया था, उनसे किसी ने पूछा था, हुजूर आपके बदन में इतनी ताकत कैसे आ गई कि आपने तन्हे तन्हा बैतुल मक़दस को फतह कर लिया? उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा था जो सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल है। उन्होंने कहा था कि तुम एक सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में भी सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, तुम्हारे घर में भी बैतुल मक़दस का फातिह हो, तो सुनो, तुम मुझे अच्छी माएँ दो। अगर तुम अच्छी माएँ दोगे तो हर माँ की कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए माएँ अच्छी होती है तो इनकी कोख से अच्छा बच्चा पैदा होता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपनी बेटी को मोबाइल लेके दिया है तो मोबाइल का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है, किससे बातें कर रही है, रात के 12 बजे ये क्यों ऑनलाइन है, रात के 12 बजे ये किससे फेसबुक में चैटिंग कर रही है, रात के 2 बजे ये किससे घुसुर फुसुर अपने बिस्तर में बातें कर रही है, इसकी शादी नहीं हुई है, इसका निकाह नहीं हुआ है, ये किससे बातें कर रही है। एक बेगैरत बाप की जिम्मेदारी है, बेगैरत बाप की जिम्मेदारी है कि वो बेटियों की इज्जत की हिफाजत करे, वरना यूं ही हाल रहा तो याद रहे आज तो फिर भी एक बाप ये इस बात से डरता है कि मेरी बेटी भाग जाएगी, कल एक बाप इस बात से भी नहीं डरेगा क्योंकि बेटियों का भागना आम हो जाएगा। बेटियां भागती चली जाएगी, गैरों के साथ शादी करती चली जाएगी, गैरों के साथ भागती चली जाएगी, बाप की नाक कटाती चली जाएगी। इसलिए आज ही होश के नाखून लेने की जरूरत है और टीम बना के अपने इलाके में तबलीग करने की जरूरत है, शरीयत को फरोग देने की जरूरत है। मैं जलसे का मुखालिफ नहीं, जलसा करो, लेकिन एक छोटा सा काम ये भी करना, 10-20 उलमा जिस गांव में भी हो, 2-4 उलमा हो, जिम्मेदारान को लेके एक टीम का गठन करो ताकि बेटियों की इज्जत की हिफाजत हो सके। हमारी बेटियां कहां कहां जा रही है इस पे किसी की नजर होनी चाहिए, वरना
यूं ही बेटियों की इज्जत लुटती चली जाएगी और तुम्हें होश तक नहीं रहेगा, तेरी नस्लें बर्बाद होती चली जाएगी। किसी दानिशवर ने एक जुमला कहा था कि अगर एक बेटा बिगड़ता है तो एक परिवार बिगड़ता है, लेकिन जब एक बेटी बिगड़ती है तो एक परिवार नहीं बल्कि कई नस्लें बिगड़ती हुई नजर आती है, कई पुश्तें बिगड़ती हुई नजर आती है। इसलिए सबसे पहले बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बेटियों को बचाओ, बेटियों को दीनदार बनाओ, ये मुआशरा दीनदार बनता हुआ नजर आएगा, तरक्की करता हुआ आए दिन नजर। और तुम भी सुनो, जलसे करने वाले भी होंगे यहाँ पे, माजरत के साथ, बड़ी माजरत, माफी चाहूंगा। सुनिए, जलसा करें, मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले जलसे वाले टीम की तश्कील के बाद ये मेले ठेले का इख्तिताम करें, इसे कतई आने ना दे। मैं आपसे अगर पूछूंगा एक बात बताओ, मेला में और जलसे में क्या फर्क है? आप कहोगे मौलाना बहुत फर्क है। मेला और जलसे में ये फर्क है कि मेला में औरतें हुस्न की नुमाइश करती है, लड़कियां खुले बाल घूमती है, बेपर्दगी का मुजाहिरा होता है, चरखे लगाए जाते हैं, डांस पार्टियां चलती है। आज आपके यहाँ का मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन हमारे इलाके में अक्सर जलसों में चरखे भी लाए जाते हैं, डांस गाने भी होते हैं। मेलों में नहीं बल्कि जलसों के मेले में, जलसे में ये सब कुछ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जलसा और मेला में क्या फर्क है, तो आप यही कहोगे मौलाना जलसा में अय्याशी होती नहीं है बल्कि मेले में अय्याशी होती है। लेकिन आज आप जलसा और मेला को एक साथ रखिए, आप इम्तियाज नहीं कर पाएंगे कौन सा मेला है कौन सा जलसा है। अगर दिन को हम आके किसी जलसे में देखते हैं, हमको इम्तियाज ही नहीं हो पाता है, फर्क नहीं हो पाता है कि हम मेले में है कि जलसे में है। रात में जब नात होती है तब पता चलता है यहाँ जलसा होता है, रात में जब तकरीर होती है तब पता चलता है यहाँ जलसा है, रात में जब काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद होती है तब पता चलता है ये जलसा है। अगर यही हाल रहा तो बताइए तो सही, जलसा और मेला में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए अपने जलसे को जलसा बनाओ। आप कहोगे मौलाना जलसे को जलसा कैसे बनाए, तो मेरी बात मानो, तो जलसे को जलसा इस तरीके से बनाओ, जलसा करने से पहले कमेटी की तश्कील दो और कमेटी वाले सबसे पहले दुकानदारों को मना करे, मनियारी की दुकानों को मना करे, चरखे वाले को मना करे, शॉपिंग वाले को मना करे, ये सारी दुकानों को मना करे। सिर्फ जरूरत की चीजें, खाने पीने की 2-4 दुकानें वो लगाई जाए, सारी चीजों को मना कर दिया जाए, ताकि देखने वाला जब देखे तो ये पुकार उठे ये कोई आम जलसा नहीं बल्कि मुसलमानों का जलसा है, नबी के चाहने वालों का जलसा है, नबी के गुलामों का ये जलसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ल के आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलते चलते 2-3 बात और सुन ले। मेरा बेटा दिल्ली जाता है, दिल्ली जाने के बाद 2 रुपए कमाता है, 2 रुपए कमाता है। नौजवान बैठे इसलिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन हकीकत बात यह है, क्योंकि मैं भी किसी का भाई हूँ, आप भी किसी के भाई हैं, आप भी किसी के बेटे हैं, आपके बाप को बड़ी उम्मीदें हैं, आपके भाई को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, आप भी किसी के भाई बेटे भतीजे भांजे हैं, हम भी उसी तरीके से हैं। मेरा बेटा दिल्ली जाता है, 2 रुपए कमाता है, 2 रुपए कमाने के बाद मेरा बेटा करता क्या है, वहां जाने के बाद शराबी बन जाता है, कबाबी बन जाता है, जुआ खेलने लगता है, ताश खेलने लगता है। दिल्ली जाता है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, होटलों में रात भर जागकर नाइट ड्यूटी करके 2 रुपए कमाता है, ताकि घर भी भेजना है और अपनी जेब का खर्च भी निकालना है, बहन की शादी का भी इंतजाम करना है, बेटी की शादी का भी इंतजाम करना है, भतीजी को भी जहेज में कुछ देना है, बड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है। लेकिन दिल्ली में जाने के बाद जैसे थोड़ा पुराना होता है और किसी के गलत सोहबत इख्तियार कर लेता है, वैसे ही शराब पीने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, ताश खेलने लग जाता है, अड्डों पे जाने लग जाता है, शराब की भट्टी को आबाद करने लगता है, जुए की भट्टी को आबाद करने लगता है। अरे नौजवानों, तुम दिल्ली गए थे 2 रुपए कमाने के लिए, तुम जानते हो, तुम ये मत समझना कि जब तक दिल्ली में रहेंगे तब तक शराब पिएंगे, घर आ जाएंगे शराब छोड़ देंगे। इतनी आसानी से शराब छूटने वाली नहीं है। अगर तुमने दिल्ली में आदत बनाई है तो घर आने के बाद भी तुम पियोगे। हमने अपने समाज में देखा है, आदमी घर आने के बाद भी शराब पीने लगता है। वरना आप सर्वे तो करो, बिहार में सर्वे करो कि बिहार में कितने प्रतिशत मुसलमान शराब पीते हैं, तो
तुम्हें बताएंगे 65% लोग मुसलमानों के खानदान से शराब पीने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम शराब पीने लगते हो और यूं ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो। हमने देखा है जो आदमी शराब का आदी हो गया है उसका परिवार कभी खुश नहीं रहता है, क्योंकि उसका शोहर आता है शराब पी के, कभी आके बीवी को मारता है, कभी बच्चों को मारता है, कभी शराब की लत में अपनी बीवी के जेवरात बेचने के लिए लेके चला जाता है, बेटे के गुल्लक से पैसा निकाल के लेके चला जाता है, कभी उधार लेके जाता है, घर में सुकून तक नहीं होता। वो अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा? उसे तो अपनी शराब का इंतजाम नहीं कर पाता है, वो अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा? इसलिए अगर तुम आज शराबी बन रहे हो, कबाबी बन रहे हो, जुआ की लत में मुलव्विस हो रहे हो, सिगरेट पीने के आदी हो रहे हो, आज तौबा करके मुस्तफा की गली में आ जाओ, मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ और कहो मेरे इमाम की ज़बानी, मैं मुजरिम हुआ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, आ जाओ मुस्तफा यहाँ भी चमकाएंगे, मरने के बाद तुम्हें कब्र में भी चमकाते हुए नजर आएंगे, हर जगह तुम्हें दमकाते हुए नजर आएंगे। और मेरे इमाम ने कहा था ये दिल तुम्हें अय्याशी के लिए नहीं दिया गया, ये जवानी बर्बादी के लिए नहीं दिया गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नबी की है नबी के लिए, इसलिए मुस्तफा जाने रहमत की इताअत में जिंदगी गुजारो। आज यहाँ से तौबा करके जाओ कि हम इंशाअल्लाह ताला गलत काम नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। कितने लोग हैं जो अहद करते हैं कि शराब नहीं पिएंगे? जरा हाथ उठाएं, कितने लोग अहद करते हैं कि शराब नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह, मरते तब तक शराब की एक घूंट अपनी ज़बान में नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं शराब का एक कतरा जब बंदा अपने मुंह में डालता है या हराम का एक कतरा अपने मुंह में डालता है, 40 दिनों तक उसकी इबादतें कबूल नहीं होती है, उसकी इबादतें रद्द कर दी जाती है। इसलिए अपने आप को हराम कारी से बचाओ। मेरी बेटियों, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम रोटी बना के भाई को खिलाओ, अच्छी बात है रोटी बना के भाई को खिलाती हो, माँ का सहारा बनती हो, बाप का सहारा बनती हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी नमाज फर्ज है, इबादतें फर्ज है, जरूरी है जहाँ पे कपड़े धोती हो, बर्तन साफ करती हो, काम काज करती हो, खाना बनाती हो, वहीं पे इबादत का भी ख्याल रखना तुम्हारे लिए भी जरूरी है। तुम ये मत सोचना ये जवानी है, जवानी यकसा रह जाएगी, किसी की जवानी एक जैसी नहीं रहती। तुमने देखा नहीं तुमसे पहले कितने बड़े बड़े पहलवान आए चले गए, तुमसे पहले कितने ताकतवर आए चले गए। तुमने देखा नहीं तुम्हारे समाज में कितने लोग ऐसे होंगे तुम्हारी उम्र के होंगे, अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं, उठने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, फिरने की ताकत नहीं, खाने तक की ताकत नहीं। वो खाते हैं, उनके बच्चे लिक्विड पिलाते हैं, अनार का रस पिलाते हैं, सेब का रस पिलाते हैं, संतरे का जूस पिलाते हैं, सत्तू घोल के पिलाते हैं, तब जाके खाते हैं। खाने की ताकत नहीं, बिस्तर में पड़े हुए हैं। कल तेरी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है, तू भी बिस्तर में पड़ जाएगा, कोई तेरा पुरसाने हाल नहीं होगा, तेरे बच्चे तेरे मरने की दुआ करेंगे, तुझे देख के नफरत करेंगे, तुझे देख के घिन करेंगे, एक वक्त का खाना देंगे, हजारों बार ताने देंगे। इसलिए अपनी जवानी का ठीक इस्तेमाल करो, जो हुआ अब आ जाओ अल्लाह की बारगाह में। शबे बारात आने वाली है 13 फरवरी को, इस मुबारक रात में, जिस मुबारक रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की मगफिरत बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा फरमाएगा। इसी मुबारक रात में अल्लाह की बारगाह में तौबा करके सर्व सुजूद होके अल्लाह का नेक बंदा बनने का अहद करके तौबा कर लो। इंशाअल्लाह ताला यहाँ जब तक रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी गुलाब की तरह महकते दमकते नजर आओगे, हर जगह कामयाब हो कामरान होते हुए नजर आओगे। इसलिए अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद मत करना। माहौल नहीं है साहब, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, दिल में बहुत सारा दर्द है,
दिल में बहुत सारी तकलीफें हैं। मेरा समाज कहाँ जा रहा है? नौजवानों, तुमसे कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, मेरे समाज की अमीरी जब देखता हूं तो मेरे होश के बाख्ते उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है मेरे समाज से ज्यादा कोई अमीर नहीं। जब मेरे समाज की शादियां देखता हूं, मेरे समाज का उर्स देखता हूं, मेरे समाज के मेले देखता हूं, मेरे समाज के ठेले देखता हूं, मेरे समाज के जलसे देखता हूं, ऐसा लगता है जब मेरे समाज का मैच देखता हूं, जब फुटबॉल टूर्नामेंट देखता हूं, जब क्रिकेट का मैदान देखता हूं, ऐसा लगता है मेरे समाज से ज्यादा कोई पैसे वाला नहीं। लेकिन जब ठंडी के मौसम में, इस ठिठुरती ठंडी में हम चौराहे पे जाते हैं, जाके देखते हैं एक 65 साला बूढ़ा एक टोटो लेके खड़ा है। जब देखते हैं तो अपने समाज की गरीबी झलकती है। एक 65 साला बूढ़ा टोटो लेके समाज में, समाज के चौराहे पे क्यों खड़ा है? रात के 3 बजे टोटो लेके क्यों निकल गया है? उसे तो सोना चाहिए था, बिस्तर में आराम करना चाहिए था। लेकिन एक 65 साला बूढ़ा जिसे दिन में भी ठीक से नींद ना आए, रात के सन्नाटे में नींद ना आए, वो सुबह सुबह ठंडी के मौसम में एक टोटो लेके क्यों निकल गया है? 5 रुपए कमाने के लिए क्यों निकल गया है? 10 रुपए कमाने के लिए क्यों निकल गया है? कभी सवारियों की गाली सुनता है, कभी पुलिस वालों के डंडे खाता है, कभी सड़क वालों की बातें सुनता है, कभी लोगों की बातें सुनता है, कभी सवारी लोग झगड़ा करते हैं, कभी चलने वाले लोग झगड़ा करते हैं, हजारों तरीके की बातें होती है। ये बूढ़ा को देखता हूं तो अपने समाज की गरीबी याद आती है। मेरा समाज कितना गरीब है। एक 65 साल का बूढ़ा ऐसा है जिसे कमा के पेट पाल रहा है, जो अपने पेट को कमा के पाल रहा है, जो अपनी परवरिश कमा के कर रहा है। उसके बेटे जवान है, कमाने के लायक है, दिल्ली पंजाब में कमाते हैं, फिर भी एक बाप की सही से परवरिश नहीं हो पाती है। ये मेरे समाज की गरीबी है। जाके देखो कभी सीएसपी का चक्कर लगाना, जहां छोटा वाला बैंक होता है, जाके देखना मेरी मस्जिद के बाहर जहां मेरी इमामत है, मदीना जामा मस्जिद ठाकुरगंज में, बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके बाहर जब मैं देखता हूं, निकलता हूं, वहां पे कई सीएसपी वाले हैं, कई छोटा वाला बैंक है। मैं 4 बजे चाय पीने के बहाने से वही बैठता हूं, लोगों के साथ बातें करता हूं। अक्सर देखता हूं एक 60 साल का बूढ़ा लाठी पकड़ के आता है, आने के बाद बैंक वाले से कहता है, बेटा जरा मेरा अकाउंट चेक करना, मेरे 400 रुपए वृद्धा पेंशन के आए होंगे, वो सरकार की तरफ से जो मिलते हैं वो 400 रुपए आए होंगे, वो 500 रुपए आए होंगे। ये मेरे समाज की गरीबी है। तेरा समाज कहां जा रहा है? तेरे समाज के पास जीने के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन हमने अपने पैसे कहां कहां बर्बाद किए हैं, कहां कहां बर्बाद कर दिए। कभी शादी के फंक्शन के नाम पे, और अब तो ये बलाम होती चली जा रही है। मेरी बेटी की शादी है, हल्दी की रस्म है, तो अब पूरे गांव के लोग हल्दी रंग का कपड़ा पहन रहे हैं। 50-50 लड़के हल्दी रंग का कपड़ा पहन रहे हैं। 50-50 हजार रुपए का खर्च हो रहा है। वो मेकअप वाले को बुलाया जाता है, ब्यूटी पार्लर वालों को बुलाया जाता है, ये कैमरा वालों को बुलाया जाता है, और पूरी अय्याशी की तस्वीरें कैमरों में कैद की जाती है, वीडियो बनाई जाती है। लोग हल्दी रंग का कपड़ा पहन के क्या दर्श देना चाहते हैं? कल भी तो हल्दी लगाया जा रहा था, कल भी तो हल्दी का रस्म अदा किया जा रहा था, लेकिन कल ऐसा नहीं था। आज मेरा समाज कहां जा रहा है? फिल्में देख देख के मेरा समाज फिल्मों की तरह जिंदगी गुजारने का आदी होता चला जा रहा है। ड्रामे देख देख के मेरा समाज ड्रामों की तरह जिंदगी गुजारने का आदी होता चला जा रहा है। याद रखना गयूर मुसलमानों, तुमने अगर लोगों के नक्शे कदम पे जिंदगी गुजारी तो जन्नत की उम्मीद मत रखना। अगर जन्नत की उम्मीद रखते हो, आ जाओ मुस्तफा की बारगाह में, आ जाओ। मुस्तफा से बढ़ के तेरे लिए कोई रहनुमा नहीं, मुस्तफा से बढ़ के तेरे लिए कोई आइडियल नहीं, मुस्तफा से बढ़ के तेरे लिए कोई मुक्तदा नहीं। आ जाओ, नबी को राजी कर लो। गरीब मरोगे, दुनिया से जाओगे, लोग कहेंगे गरीब मर गया, कब्र में जाओगे, मुस्तफा कहेंगे मेरा चाहने वाला आ गया है, मेरा गुलाम आ गया है। हर जगह कामयाब हो, कामरान होते हुए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। आखिरी बात सुने, आखिरी बात, बेटो बाप की कदर करो। मेरा समाज जब तक बाप जिंदा है बेटा बात तक नहीं करता, बात तक नहीं करता। तुमने देखा होगा समाज में हकीकत में बेटा बात तक नहीं करता। बाप मर जाए तो दिल्ली से 50,000 का टिकट लेके मिट्टी देने के लिए आता है, बात तक नहीं करता जीते जी बाप के साथ। एक गोली नहीं देता, टेबलेट तक नहीं देता, लेकिन बाप के मरने के बाद बाप के नाम पे मजार पे जाके चादर पे चादर चढ़ा रहा है। तुम्हें क्या लगता है साहिब मजार राजी हो जाएंगे?
بیٹو نہیں، اگر تیرے باپ کو چادر کی ضرورت ہے، تیرے سماج کو چادر کی ضرورت ہے، تیری سوسائٹی کو چادر کی ضرورت ہے، تیرے معاشرے کو چادر کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے، حقیقت میں ہے، ورنہ دیکھو کتنے باپ ایسے ہیں جو ایک لنگی میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. ایک لنگی پہن کے میرا باپ ڈاکٹر کے گھر جاتا ہے، ایک ہی لنگی پہن کے میرا باپ پٹوا کاٹتا ہے، ایک ہی لنگی پہن کے میرا باپ مکئی کے کھیت میں کام کرتا ہے، ایک ہی لنگی پہن کے جمعہ پڑھتا ہے، ایک ہی لنگی پہن کے سسرال جاتا ہے، ایک ہی لنگی پہن کے سمدھی کے گھر جاتا ہے، اور میرا بیٹا پیسے کمانے کے بعد نہ جانے کہاں کہاں خرچ کر رہا ہے. بیٹو تمہاری زندگی آوارگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ماں باپ اگر زندہ ہے راضی کر لو، ماں باپ راضی ہوں گے، پروردگار عالم راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائیں گے. آ جاؤ اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، اپنے پریوار کو خوش رکھو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، جہاں جہاں مدرسہ ہے تعاون کرتے رہو، مدرسے کو آگے بڑھاتے رہو. بیٹیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری بیٹی کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنا اور بیٹیوں پہ نظر رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تم جانو گی کہ تیری بیٹی کے پاس موبائل آیا کہاں سے، اس کو تم نے کپڑا لے کے دیا نہیں، یہ کپڑا حاصل کہاں سے کیا، اس کو تم نے جھمکا لے کے نہیں دیا تھا، انہوں نے جھمکا کہاں سے حاصل کیا، تم نے چپل لے کے نہیں دی تھی، انہوں نے چپل کہاں سے لی ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ سماج میں انقلاب پیدا کرو، سماج میں چینجنگ لاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. اگر وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. سبھی لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اخیر میں حضرت علامہ اسلم صاحب قبلہ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ عبد القادر اشرفی اور بھائی جناب حافظ و قاری غلام نبی صاحب جنہوں نے کافی محبتوں سے نوازا، اور آپ کے علاقے کے تمام علماء. اللہ رب العزت سب کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، سب کو بدلہ عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. سلام پڑھیں کہ کلام پڑھیں؟ ہیلو 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 ہیلو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا تھا نا کہ تقریر واقعی آپ کی جو ضرورت ہے وہی وہ بیان کریں گے، اور یہ تقریر میرے خیال سے پہلے ہونی تھی، کیونکہ لوگ آتے ہیں تو اس کو وقت پہ اگر کوئی دوا نہیں دی جائے تو وہ جو مرض ہے وہ اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ نہیں. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کم وقت میں گفتگو بہت اچھی اچھی باتیں آپ کو سننے کو ملی. اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اتنی اچھی گفتگو یار، آپ 30,000 40,000 نذرانہ خرچ کرتے پھر جا کے ایسی باتیں سننے کو ملتی، لیکن آپ کے علاقے میں رہ کر آپ کے دل کے حالات کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل تک اچھی باتیں اتارنے کا سلیقہ حضرت مولانا امیر الدین رضوی صاحب قبلہ کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ خوب عروج بخشے اور کامیابیاں نصیب فرمائے. میں ان کی تقریر کو ایک طرف رکھتا ہوں، اور ایک وہ مطلع جو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا اور بہت پسند کیا گیا، اور بہت آج بھی وہ کلام بجتا ہے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں. پڑھتا ہوں، سنیں محبت کے ساتھ.
کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو. اس کلام کو سنے ہیں آپ لوگ؟ سنے ہیں تو چھوڑ دیں، سنا دوں؟ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. آؤں ادھر لے کر میں مائک بٹھانے کے لیے؟ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، سمٹ کر بیٹھیے تاکہ ٹھنڈ آپ سے دور رہے، ہے کہ نہیں؟ پیش کرتا ہوں تھوڑی سی گونجو. پھر سو گئے کیا؟ تھوڑا سا تھوڑی محنت کر دیجیے آپ. کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو. کیوں؟ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آج ہی اپنے رب کو منا لو. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اب تک آپ نے مجھے انعام اتنا دیا کہ میں اس کو اگلے سال تک نہیں بھولوں گا، لیکن اب میں چاہتا ہوں حضور کے نام پہ لوگ جان کٹانے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے کہتے ہیں نا حضور کے لیے ہم جان دے دیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ سچ بات ہے کہ جھوٹ بات ہے؟ سچ بات ہے نا؟ تو جب حضور کے نام پہ آپ جان دے سکتے ہیں تو حضور کے گھر کے لیے کچھ